It's time now for our gala session at the India Today conclave on day one. Imagine having to come out to bat after Sachin Tendulkar hangs his boots. The world saw what Tendulkar did, and now you have been selected to take his place. It's not an easy situation to be in for anybody. And that is exactly the kind of situation that Jagat Prakash Nadda found himself in, having to pad up as the new BJP president after Amit Shah ji's term got over. The formidable Shah is still around, but no longer as president. And Nadda ji has had to fill his shoes. And yet, in his 20 months and 17 days as the new party Adhyaksh, Jagat Prakash Nadda has brought his own personality to the job. Never seeking to be the new Tendulkar, instead carving his own place as the new big boss in town. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to welcome to the 19th India Today conclave the 11th president of the world's largest political party. Can we have a warm round of applause as I welcome Jagat Prakash Nadda. Nadda ji, welcome. Thank you so much for joining us over here. I want to start by asking you about your term as the BJP president and reflecting on the last 20 months as the Adhyaksh. What is it that you look back and say, this is what I believe is my biggest achievement so far? And in the term that remains, what are the key things you would like to get done? Nadda ji. First of all, thank you very much for giving me an opportunity, Rahul ji. The first question you have asked is, how do I feel after taking over as the national president of Bharatiya Janata Party? I feel, first of all, that I am now the president of a party, Bharatiya Janata Party, which was previously known as Bharatiya Janasangh. And this party has seen presidents like Shyama Prasad Mukherjee, Dr. Shyama Prasad Mukherjee. This party has seen presidents like Deen Dayal Upadhyay, who has been the ideologue of the party. This party has seen president and carving a way for the party like Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee. This party has seen Kushabha Thakre, later Rajnath Singh ji, Nitin ji, Amit Shah ji. They have all come from a very common background, from a very humble background. And we have seen a Prime Minister, the world's one of the most dynamic leaders, Shri Narendra Modi ji, coming. We are privileged, and I am privileged, that I am the president of a party in which, from such a humble background of Himachal Pradesh, a very small town of Himachal Pradesh, one becomes the national president of the world's largest party. It is possible only in Bharatiya Janata Party. This is what I feel first. This is not possible in other parties, number one. Number two, you talked about big shoes to fill. You have talked about my predecessor has hanged his boots. You see, all this concept, we are not from this political thought process. We are from the Indian political thought process. And in the Indian political thought process, we work, it's a party which has got an ideological background. It's a party where we are cadre-based and we have got a mass following. But at the same time, we work with collective wisdom under the dynamic leadership of Narendra Modi, and we work in continuity. So those shoes, those boots, you must have hanged it. But it is very much within the ambit of Bharatiya Janata Party. His contribution is also being taken well. Amit Shah ji is now no more the president, but Rajnath ji is no more the president. But in our working system, they are part and parcel of day-to-day activity. So I never feel that I'm alone or something, now I have to perform or I have to go forward. I'm only working in continuity. जो काम उन्होंने छोड़ा उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने लिया है. और इसमें जब मैं देखता हूँ, तो I feel little handicapped that the day I became, within 1 month, Corona, the century's most devastating pandemic took place.
and so everything was paralyzed, lockdown लग गया, बाकी सारी चीजें हुई. लेकिन चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का मौका भी मिला. And I'm happy to share with you that all political parties were in isolation, where all political parties went to quarantine, they were nowhere to work. It was Bharatiya Janata Party which took the work of Seva Hi Sangathan Hai and did the social work, and not in lakhs but in crores. We distributed masks, we distributed sanitizers, we distributed medicines, we distributed food packets to the tune of 50 crores. And it was not as if we are doing some charity work. ये हमारा human angle था, जिसने, और this was done digitally. In 3 months' time of lockdown, I got the opportunity of addressing at least 400 video conferences. So the whole party and the cadre got converted, digitalized. And पहले किसी को मालूम भी नहीं था कि ये virtual meeting क्या होती है. और 2-1.5 महीने बाद गांव का कार्यकर्ता बोलने लग गया, सर मुझे लिंक भेजिए. मैं I want to. This is the change which has took place. And of course, keeping that factor in view, हमने सोशल वर्क को तो किया ही किया. इलेक्शंस की दृष्टि से भी काफी काम करेंगे. बहुत एक्सपीरियंसेस मिले मुझे. इलेक्शन आ गया, अब बिहार का इलेक्शन आ गया, कैसे लड़ा जाएगा. इलेक्शन कमिश्नर वाज आल्सो नॉट वेरी क्लियर whether they will give us a permission for a public meeting or not, whether they are going to follow the protocols or not, whether we will be able to make them follow the protocols or not, whether we will be able to see to it that we are abiding the rules. Election में voter आएगा कि नहीं आएगा, ये भी एक प्रश्न था. I'm talking about last November. But yes, things went on well. Out of 58 by-elections, 40 elections were won by Bharatiya Janata Party. The strike rate in Bihar was the best which Bharatiya Janata Party witnessed. And later on, if I talk about the local body elections, right from Lahaul Spiti, Ladakh to Karnataka, we won all elections. We won the greater Hyderabad election, municipal elections also, Manipur elections, Arunachal Pradesh elections. Later on, I had an interview with you during the state elections, which took place in this year, early February. That was about, we won Pondicherry. For the first time, we could make the government there. We had a good presence in West Bengal. We got 38% votes there and 77 seats, from 3 to 77 seats. We retained in Assam. So we did fairly good in elections also. As far as the organizational part is concerned, as I said that we are working in continuity. See, ours, as I said, it's a cadre-based with mass following. There are 10,40,000 booths. We have 8 lakh plus committee-wise established booth working, which has been given us by Amit Shah ji. And now I'm trying to consolidate and expand. So I feel that in short span of time, with the handicaps which I faced, we have tried to see to it. And it's not me. शब्दों में हम I बोल देते हैं, but it is always we. We as a whole. I never feel that मैं अकेला हूँ या मैंने कुछ करना है. सबने मिल के करना है. और सबके मिलने के बाद इतनी बड़ी पार्टी है, आगे बढ़ेगी. मेरी आपसे ये बात जानने में बहुत रुचि है. आपने चुनाव लड़ने का जिक्र किया. चुनाव लड़ाने में आपके प्रीडिसेसर अमित शाह जी की महारत थी, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये दबाव रहता है कि क्या लोग मेरी तुलना, या जो फैसला मैंने किया, जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई, उसकी तुलना अमित शाह उस सिचुएशन में क्या करते इससे करेंगे? क्या ये एक फैक्टर रहता है आपके जहन में? आप अपने काम करने के तरीके को या फिर अपने चुनाव लड़ने लड़ाने के तरीके को अमित शाह जी के चुनाव लड़ने लड़ाने के तरीके से भिन्न कैसे मानते? देखिए, भिन्न नहीं है. एक तो मैंने, इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमारे कार्यशैली और कार्य करने का जो तरीका है राहुल जी, उसमें मैं कभी भी, मेरे को ये दिमाग में नहीं आता कि इसमें अमित शाह जी क्या करते, क्योंकि अमित शाह जी साथी है ना. एक टेलीफोन कॉल ही तो करना है और यही तो पूछना है कि इस सिचुएशन में what should we go, which side should we go.
एंड व्हाट वी शुड डू, इतना ही पूछना है। तो ये मेरे से बाहर कहाँ है? और उनका भी, या राजनाथ जी का भी, उनका भी, या नितिन जी का, सबका हमको साथ मिलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सारी चीज़ों में रुचि लेते हैं, और एक प्रशासक होने के बावजूद भी उनका राजनीतिक दृष्टि से बहुत एक्टिव पार्टी में कंट्रीब्यूशन होता रहता है। तो मैं मुझे कभी इस तरीके से न सोचने का मौका मिला है, और मैं इसमें कोई, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिव विजडम से चलना है, तो अपने व्यू पॉइंट को कहने में मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो कुछ बोलते भी हैं, फिर मैं बोलता हूँ ये भी एक व्यू पॉइंट आया है, बोला ये भी अच्छा है, देख लो, इसको कर लो तो अच्छा रहेगा। तो इट्स मुझे कोई अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये उधार नहीं लेना होता, ये हमारा ही है। तो इसलिए हमको अपने बीच में उनकी बातों को लेकर के चलने का हमेशा सौभाग्य मिलता है। तो आई डोंट फील दैट वे। हाँ, नेताओं में अगर ये आ जाती है कि मैंने कुछ अलग करना है, तो समस्या यहाँ से खड़ी होती है। और हमने बार बार कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कलेक्टिव विजडम में हम सब लोग साथ चल रहे हैं, तो ये दिक्कत ही नहीं आती मुझे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आपका जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों में रहने वाला है, वो आगामी विधानसभा चुनाव जो हो रहा है, और उसमें सबसे बड़ा चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और आपके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रहेगी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को आप कैसे पढ़ते हैं? आपके हिसाब से जो योगी आदित्यनाथ जी की बीजेपी की सरकार है, उसके परफॉर्मेंस को लेके जब आप जनता के पास जाएंगे, क्योंकि तमाम फैक्टर्स हैं, सरकार का खुद का परफॉर्मेंस है, कोरोना काल में जो लोगों को दिक्कतें हुई कहीं ना कहीं वो एक सवाल है, तमाम तरह के इश्यूज हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? आप कितने कॉन्फिडेंस हैं कि लखनऊ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने? देखिए, वैसे स्ट्रैटेजी को पब्लिक करने का विषय कम होता है, और राजनीति में रणनीति पर्दे का विषय होता है। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही, हर दिन, हर पल, हर समय एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है। इसलिए बाकी लोग चुनाव तो तब लड़ेंगे ना जब कोड ऑफ कंडक्ट लड़ेगा। हम तो हर दृष्टि से हमेशा प्लानिंग के साथ पार्टी क्या कर रही है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए कई बार मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा एरोगेंस हो जाएगा, लेकिन जो लोग अभी करने लगे हैं वो होमवर्क हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं। तो इसलिए जब इलेक्शन की बारी आती है, तो उस समय तक जब वो उन बातों के पीछे लगते हैं, तो मुझे कई बार हंसी भी आती है, मुस्कुराहट भी आती है। अब ये रणनीति का विषय होता है, इसलिए हम बताते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन की तैयारी हम अभी थोड़ा कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले से शुरू हो गया है। और इसके तौर तरीके, सिस्टम्स आर इन प्लेस और नॉट, हमारी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ हमको रेक्टिफाई करना है, कहाँ हमको बल देना है। और आप सब लोग सुबह शाम हम लोग को इतना बताते रहते हैं, तो वो हमारे लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उस इंफॉर्मेशन पर हम वर्क करते हैं। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे कहीं का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी उस दिन नहीं लड़ने ले जाती है जिस दिन चुनाव होते हैं। हम पहले से ही क्यों, और उसमें हमारा, अब देखिए ना, ये कल्चर किसने दिया कि हम जनता के बीच में किए गए वायदों को पूरा करके जाएं। ये इससे पहले क्यों नहीं था 70 साल में ये कल्चर? नया मैनिफेस्टो लेकर के आ जाती थी पॉलिटिकल पार्टीज, और जनता भी भूल जाती थी। ये अपना होमवर्क, अपना ये कार्ड बताना, यानी अपना जो हमने काम किया है उसको बताना, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। तो इसलिए हम कॉन्शियसली और कॉशियसली इस बात को करते रहते हैं कि क्या कहा था, क्या किया है, क्या करना बाकी रह गया, कब तक हम करेंगे। हमारे यहाँ इसके लिए कमिटीज बनी है, पॉलिटिकल पार्टीज में मैनिफेस्टो कमेटी की इम्प्लीमेंटेशन कमिटी बनी है। दे हैव टू सी टू इट, दे हैव टू वर्क ऑन इट, एंड चीफ मिनिस्टर्स टेक पर्सनल पेन्स टू सी टू इट दैट इट इज बीइंग डन। तो ये सारी चीजें उसमें वर्क करती हैं। बीते कुछ दिनों से नड्डा जी
लखीमपुर खेरी का जो वाकया है वो सुर्खियों में रहा है, देश भर में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में उसको देखा गया है। एक बेहद रफ्तार से चलती हुई गाड़ी कुछ किसानों को रौंदती हुई चली जाती है। 5 दिन हो चुके हैं, अब तक जो मेन अक्यूज हैं इस केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और जब उनको समन किया गया तो वो पहुँचे नहीं। मेन अक्यूज के पिता केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पे लखीमपुर खेरी के इस वाकये से आप कितने चिंतित हैं, इस पर आपकी क्या सोच है और क्या आपको लगता है कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए, इस घटना को हम चुनाव की दृष्टि से न देखें, मानवता की दृष्टि से देखें। ये दुखदायी घटना है और हम आपको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आज सवेरे मुझे जानकारी मिली है, योगी जी भी आए थे, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड नोबडी इज अबव लॉ, ये स्पष्ट है। हमने एसआईटी गठित की है, प्रोफेशनली साइंटिफिकली बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टिगेशन विल टेक प्लेस विद हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और दूध का दूध पानी का पानी होगा और इसको करने में हम कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक इससे अलग बात मेरे ध्यान में आती है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक नया तरीका जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है विरोध का, उसके बारे में भी सोचना चाहिए, वो भी चिंताजनक है। कई घटनाएं हो रही हैं, राह चलते गाड़ी पर अटैक हो जाता है। ये भी मैं इस इंसिडेंट के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इन जनरल जो पब्लिक लीडर्स को उनके घर को घिराव करना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमको सिस्टम्स को कहाँ तक ले जाना है, इसके बारे में भी कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए। लेकिन नोबडी इज अलाउड टू टेक लॉ इन हिज ओन हैंड। हर एक के साथ न्याय होगा, इस बात का मैं एश्योरेंस देता हूँ। कहीं ना कहीं ये जो वाकया है वो जुड़ा है किसानों के आंदोलन से और किसानों का आंदोलन काफ़ी वक्त से, खासतौर से पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलता ही चला जा रहा है। सरकार ने तमाम कोशिशें की कोई समाधान निकालने की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। तो पहले तो ये बताएं कि किसान बिल जो आप लेके आए हैं, किसानों के आंदोलन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि उस पर पुनर्विचार कभी सरकार करेगी? और दूसरा, किसानों की जो नाराजगी है, आप कह रहे हैं कि बिल उनके फायदे में है, कई विशेषज्ञों को लगते हैं कि है भी, लेकिन कुछ किसान हैं, खासतौर से नॉर्थ इंडिया के किसान, जो इस बात को नहीं मानते। तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा मैं लंबा बोलूँ, कुछ इश्यूज ऐसे आ गए हैं क्योंकि किसान आंदोलन बहुत दो वाक्यों में नहीं बोला जा सकता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किसान लीडर, फार्मर्स लीडर, किसानों का नेता, ये एक स्लोगन लेकर के कई राजनेता किसान नेता के नाम से पहचाने गए। बट द फैक्ट रिमेन्स ऑन रिकॉर्ड दैट व्हाटएवर हैज बीन डन for the farmers, for the kisan, has been done by Prime Minister Narendra Modi. This I would put on record. और ये मैं फिर कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं देखिए आपको बताता हूँ, बहुत दिनों से किसानों के बारे में चर्चा हुई, हम मंत्री भी रहे। क्या होता था बजट? 22,000 करोड़ रुपए, 23,000 करोड़ रुपए। टुडे इट इज 1,23,000 करोड़। ये 57,000 करोड़ की कर्जा माफी करके अपने आप को किसान का चैंपियन बनने लगे। 1,23,000 लाख करोड़ रुपए, 6,000 के 2,000 के हिसाब से किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ किसान को नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक के खाते में पहुंचाया, विच इज अ हिस्टोरिक। इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देयर वर सम प्रॉब्लम्स, बॉटलनेक्स वर रिमूव्ड और उसको भी अच्छे ऑल्टरनेटिव के रूप में खड़ा करने का काम किया। कभी कोई किसान सोच सकता था कि उसको पेंशन लगेगी, वो किसान पेंशन लेने लग गया। कभी किसी ने सोचा था कि 2400 की बोरी उसको 1,200 रुपए में मिलेगी फर्टिलाइजर की, और यानी एक बोरी मुफ्त किसान को मोदी जी की तरफ से मिल रहा है। कभी किसी ने सोचा था इस बात को? ये करके दिया। 1.5 गुना प्रोडक्शन का, लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया जाएगा। इसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इंप्लीमेंट किया और मैक्सिमम खरीदी हुई है, और मैक्सिमम, और पार्लियामेंट में भी और सब जगह
प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमने भी कहा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि MSP was there, will be remain and will remain in future also, and we are going to purchase on MSP. जहां तक रिफॉर्म्स का सवाल है, हालांकि अब मैं रिफॉर्म्स की डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप एक कोई छोटा सा पेन बनाते हो तो आपको तो दुनिया में उसको बेचने का अधिकार सब जगह है, लेकिन किसान अगर मान लो कोई फल लगाता है तो उसको बेचने का उसकी मंडी में ही अधिकार है, बाकी कहीं अधिकार नहीं है। ये 70 इयर्स की डेमोक्रेसी में हम कहाँ पर ले गए किसानों को? हमने उनको बाधित किया है या उनको हमने छूट दी है? लेकिन एनीवे, रिफॉर्म्स की बातों को छोड़ दीजिए। 11 राउंड्स का डिस्कशन हुआ। 11 राउंड्स के डिस्कशन के बाद हमने कह दिया कि चलो, वी सस्पेंड these reforms for 18 months and let's come for dialogue. Why the dialogue is not taking place? What are the provisions on which you want to have a dialogue? There is nothing which is taking place. अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसको सस्पेंड करो, हमने सस्पेंड कर दिया। अब देखिए, आंदोलन किस बात का है? जब हम बात करने को तैयार हैं, जब हम आपके प्रोविजंस को सस्पेंड करके बात करने को तैयार हैं, अभी कई बार लोग बोल देते हैं कि ईगो हटाना चाहिए। है कहाँ ईगो? हम तो चाह रहे हैं कि डिस्कशन करें, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, यू कैन ब्रिंग द हॉर्स नियर द वाटर, यू कांट फोर्स हिम टू ड्रिंक। कुछ लोग हैं जिनका मिसकंसेप्शन है, उनका मिसकंसेप्शन हटा देंगे। कुछ लोगों को फैक्चुअली चीजें नहीं मालूम, उनका हम फैक्चुअली भी उनको ठीक कर देंगे। लेकिन जो राजनीतिक कारणों से उतरे हुए हैं और उन्होंने उसमें से पॉलिटिकल मोटिव लेकर के चले हुए हैं, उनको मैं एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जमीन पर हिलाई नहीं जा सकती। धरती पर चीजों का मुंहतोड़ भारत की जनता जवाब देती है और उसकी तैयारी हम करते हैं। हमें डर किस बात का? हमने सारी बातें फैक्चुअली रखी है। व्हाई शुड वी फील शाय और व्हाई शुड वी फील स्केयर्ड? नथिंग डूइंग। हम आज भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं। डेमोक्रेसी है, ये किसी की जमहूरियत है, ये यहाँ किसी की बपौती नहीं है। हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम डिस्कशन चाहते हैं। आपकी कुर्सी चली गई इसलिए आप हल्ला करना शुरू करो, तो ये तो पीड़ा कहीं और है और आवाज कहीं और निकल रही है। तो जनता के बीच में जाने की ताकत तो हमको भी है, और हमारे पास मोदी जी जैसे नेता हों और जिन्होंने सारे काम को किया है, तो ठीक है। हम तो इलेक्शंस को फेस करने वाले लोगों में से हैं, बूथ पर काम करने वाले लोगों में से हैं। कौन जानबूझ के गड़बड़ कर रहा है और कौन गलती से गड़बड़ कर रहा है, इसका डिस्टिंक्शन करने की ताकत हमको जमीन पर है, तो हम वो करेंगे। पर कहीं ना कहीं जो किसान विरोध और हम फिर ये क्षमा करिएगा, थोड़ा विषय आता है तो इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन तैश में नहीं बोल रहा हूँ, पूरी हलीमी के साथ बोल रहा हूँ, विद फुल ह्यूमिलिटी इन माय कमांड। आई वुड लाइक टू से डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इस तरीके से कर्म नहीं किए जाते और कर्म नहीं होते, ये मान करके चलिए। और विपक्ष को, अगर राजनीति में विपक्ष को विपक्ष जानना हो, तो मैं उनसे कहूंगा, लंबे समय रहा हूँ विपक्ष में और विपक्ष का नेता भी रहा हूँ। पेशेंस सबसे पहली चीज होती है विपक्ष में काम करने के लिए। जिसमें पेशेंस नहीं, वो विपक्ष कर ही नहीं सकता। पेशेंस किसको बता रहे हैं आप, राहुल गांधी को कि अखिलेश को? देखिए, जिसको अच्छी बात जो सुन ले उसका भला। हमारे को, मैं तो जो हमारी जो छोटी मोटी जानकारियां हैं उसको मैं कोई अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रखना चाहता हूं। जो भी उसका लाभ उठा सकता है उठा ले। कोरोना काल में तो ठंडे पड़े हुए थे, लेकिन अब एकाएक सक्रिय हो गए हैं, बाहर निकल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें एक सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में विपक्ष को प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा, हम लोग निकलते हैं तो हमें लॉकअप कर दिया जाता है कि पूरे हिंदुस्तान को कश्मीर बनाया जाए। देखिए, अब आप मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं कुछ राहुल पर बोलूं, राहुल गांधी जी पर बोलूं। वैसे मैं व्यक्तिगत किसी पर नहीं बोलता या इनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर नहीं बोलता, लेकिन ये जो इन्होंने रास्ते लिए हैं ना, ये 70s के डिकेड्स के रास्ते हैं, ये 80s के डिकेड्स के रास्ते हैं। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती। इससे पूछ लेना ज्यादा अक्लमंदी है, पब्लिक से पूछ लो तो दे नो
कि कहाँ एक्टिंग हो रही है और कहाँ सच्चाई है, और वो सच्चाई के साथ खड़ी हो जाती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए ये जिसको बोलते हैं कि सिंबोलिज्म, 15 मिनट के लिए चले गए, 2 फोटो शॉट्स ले लिए और प्रेस को दे दिया, ये ठीक है थोड़े दिनों के लिए। पॉलिटिकल पार्टी चलानी है उन्होंने, तो उन्होंने भी तो कुछ कार्यक्रम दिखाने हैं। इससे बदलाव नहीं आता है और इससे लोग मजबूत नहीं होते हैं, ये उनको समझना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के साथ भी बहुत सख्त हूँ। मुझे जब लोग बोलते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम किया है, तो मैं तुरंत बोलता हूँ अपलोड करो अपना फोटोग्राफ, साथ में आज की अखबार लगाओ और मुझे भेजो, आई वुड लाइक टू सी। मॉनिटरिंग करना हमारा काम है, चेकिंग करना हमारा काम है, धरती पर कितना काम हुआ उसको जानना हमारा काम है। किसी की कैपेसिटी 500 की और 5000 बोले कैसे चलेगा? पॉलिटिक्स नहीं चलती है, इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स। सो वी हैव टू बी वेरी श्योर दैट ये धरना कितने का हुआ, यानी कितने पीपल पार्टिसिपेटेड, कितने लोग इसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, कितने लोग इसमें पैसिव पार्टिसिपेंट थे, ये इशू कितना जा रहा है, ये कितना टच कर रहा है, just for the sake of an agitation we are doing it, or really people stand by it. ये सब चीज़ों को मूल्यांकन करना पड़ता है। और इन सब लोगों को जब मैं देखता हूँ, इनके इंटरव्यू सुनता हूँ, तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन ध्यान में आ जाता है कि इनकी जानकारियाँ कितनी सीमित हैं। क्योंकि कुछ इश्यूज हैं जो इस वक्त एक साथ प्ले आउट कर रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। एक ये किसानों का आंदोलन, आपने कहा कि आप झुकने वाले नहीं, लेकिन कुछ किसान हैं जो नाराज हैं। सवाल नंबर 1, उनको हम संभालेंगे राहुल जी। मैंने फिर कहा, जो लोग वेल इंटेंशनड हैं उनको हम साथ लेकर के वापस आएंगे, जो लोग वेल इंटेंशनड हैं। हाँ, जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से ही काम करना है, उसमें मैं ईश्वर ये जरूर करूंगा कि उनके साथ जनता ना जाए, इसकी चिंता हम जरूर करेंगे, और ये पॉलिटिकल हमारा राइट है, हम करेंगे। सवाल नंबर 2, जो सरकार पे आरोप लगा वो कास्टिज्म का था, एक पर्टिकुलर कास्ट को फायदा पहुंचाने का, और खासतौर से ब्राह्मण समाज में उसको लेके आंदोलन हुआ। क्या आपको लगता है कि ये धारणा सही है, गलत है? अगर गलत है, किस विषय पर? ये ठाकुरवाद पे, मतलब कि यूपी की सरकार पे एक चार्ज लगा कि एक कास्ट विशेष को ज्यादा फायदा मिलता है, बाकियों को नुकसान। कास्टिज्म, कोरोना काल में जो जॉब लॉस और इकोनॉमिक लॉस हुए, और ये फार्मर एजिटेशन, क्या आपको लगता है कि ये सारे जो इश्यूज हैं ये बिल्डअप होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, हमारे काम करने का तरीका मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसलिए जब हम न्यूमेरिकली चीज़ों पर आते हैं, तो बेनिफिशियरीज को जब हम उठा करके देखते हैं, तो कास्ट वाला चार्ज भी जाता है, बाकी चार्जेस भी जाते हैं, और हम उसको बूथ में ट्रांसलेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम उसको बूथ पर इस विषय को हम ट्रांसलेट करेंगे। उनको ये सब एक हैंडी स्लोगन्स मिल जाते हैं जो थोड़ी देर के लिए चल जाते हैं, तो वो करेंगे, उनका काम है, वो करें। लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे और भी प्रदेश हो, हम फैक्चुअली जब चीज़ों को हम ध्वस्त कर सकते हैं तो हम उसको ध्वस्त करेंगे भी, और ये चीज़ें टिकने वाली नहीं है। अध्यक्ष के काल में हमने ये देखा कि कई राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स बदले। तो पहले तो कर्नाटक में बड़ा सवाल हो रहा था कि अगर आप चीफ मिनिस्टर बदलेंगे तो क्या होगा। आपने नए चीफ मिनिस्टर को आप लाए, वो चीफ मिनिस्टर आज आए भी थे मुंबई जी, उन्होंने सेटल इन भी हो गए और अपने काम पे भी लग गए। आपको उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में 2-2 दफा आपको चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ा, और अभी आपने गुजरात में भी किया, जहाँ पे एकाएक आप एक फर्स्ट टाइम एमएलए को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया। तो ये जो आपकी बीच रास्ते में चीफ मिनिस्टर बदलने की स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे वजह क्या है? और क्या कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर बदल कर पार्टी ये मान रही है कि पिछला जो चीफ मिनिस्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए आपको एंटी इनकम्बेंसी से डील करने के लिए, कि झारखंड में जो हुआ वो दोबारा ना हो, कि हम ही एंटी इनकम्बेंसी से डील करके आपको चुनाव से पहले ही एक नया चेहरा दें? देखिए, ये फैसले आइसोलेशन में नहीं होते हैं, और ये फैसले एक विषय को लेकर के नहीं होते हैं, इन टोटलिटी सोचने के बाद होते हैं। सारी चीज़ों का एक विचार करने के बाद ये सारी की सारी चीज़ों में होता है। एक उसमें प्रिंसिपल होता है, ओल्डर जनरेशन शुड गिव चांस टू द यंगर जनरेशन, एक ये उसका फैक्टर होता है। दूसरा ये होता है कि हम गोल पोस्ट के नज़दीक जो होता है उसको हम कई बार पास भी कर देते हैं कि वो गोल पोस्ट पर मार दे, ये भी उसका रीज़न हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें वेल थॉट प्रोसेस में होती हैं, और ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि पासिंग ओवर द बैटन
is by and large, the rule adopted by Bharatiya Janata Party. We are the party who has got the youngest cabinet. We are the party who has got young chief ministers. We are the party where the older generation always gives over to the younger generation. और अब आपने पूछ लिया इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमने तो तीन स्टेट्स में 4 चीफ मिनिस्टर्स बदल दिए। जाने वाला कहता है मुझे बहुत मैं धन्यवादी हूँ पार्टी का कि पार्टी ने मुझे मौका दिया और अब मेरा छोटा भाई बहुत अच्छे से इसको संभालेगा और हम पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। ये हमारे संस्कारों में होता है और वो हैंड ओवर करता है। कांग्रेस पार्टी ने तो एक ही स्टेट में हिम्मत की थी, तो वहाँ जो हाल हुआ वो तो आप जानते ही हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल इन भारतीय जनता पार्टी वेयर पीपल द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। और फिर मैं बताऊं ये क्या है, ये दोष है जो ऐसे शब्दावली आ जाती हैं, जैसे ही होल्ड्स द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। तो व्हेन यू होल्ड अ पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप, साइकोलॉजिकली आप ये महसूस करने लगते हो कि आप किसी पोस्ट पर हो। हमारी शब्दावली क्या है, इनको मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी गई है। तो जिम्मेवारी से बोध ये होता है साइकोलॉजिकली कि दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू बी मी एंड इन टाइम्स टू कम इट इज टू बी शोल्डर्ड बाय अदर आल्सो, वी हैव टू पास ऑन द बैटन। तो एक अलग तरीके का संस्कार पैदा होता है और उस संस्कार के तहत हम काम करते हैं और इसके नतीजे भी अच्छे आते हैं। आपने कह दिया गुजरात की बात, लेकिन अब गांधीनगर में 90% म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव हम जीत गए हैं। तो वो उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है, लेकिन डायनेमिज्म है, नए लोगों को चांस देना है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। और पार्टी के अंदर भी ये अब आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, अभी हमारे यहाँ लगभग 30 बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। हमने कहीं भी किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। इट्स अ कॉन्शियस एंड अ कॉशियस डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन प्लेस। ऐसा मतलब तो नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन नहीं, पार्टी को इंटरनल डेमोक्रेसी में ग्रो करना है। हार्ड डिसीजंस हैव टू बी टेकन, समबडी हैज टू सैक्रिफाइस। उसको अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द आइडियोलॉजी, इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। तो वो करते हैं और हम उनको सबको संभाल करके लेकर के चलते हैं। तो इस बात से मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स समय समय पर होते रहते हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। आपने जिक्र किया पंजाब में कांग्रेस ने जिस तरह से अपनी सरकार बदली, उसके बाद चीफ मिनिस्टर की नाराजगी के बारे में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए, मुलाकातें हुई बीजेपी के शीर्ष नेताओं से। तो पंजाब के चुनाव को नड्डा जी आप कैसे देखते हैं? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या बीजेपी उसको सपोर्ट करेगी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलकर पंजाब का आगामी चुनाव लड़ने वाले? देखिए, अमरिंदर सिंह जी अभी कांग्रेस में हैं, वो आहत है। उनके इंटरव्यूज जो मैंने सुने देखे, उनकी इज्जत नहीं रखी गई, उनकी हैज़ नॉट बीन हैंडल विथ जिसने केयर के साथ उनको हैंडल करना चाहिए था। ये उनके साथ दिक्कत है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को आगे चल करके एक अच्छा पोटेंशियल फोर्स के रूप में बढ़ने का स्कोप देखता हूँ। रही बात कि अमरिंदर सिंह जी के साथ ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कांग्रेस में है, उनको अपना रास्ता चुनने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, वो तय करे, लेकिन हमारे साथ इस तरीके की कोई बात नहीं। क्या आपको लग रहा है कि वहां नाराजगी थी, क्योंकि खासतौर से जो किसान का बिल आया उसके बाद पंजाब में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी, और अगर अमरिंदर सिंह आ जाएं तो कहीं ना कहीं उस नाराजगी को काउंटर करने में आपको मदद मिलेगी? नहीं, देखिए, हम इस तरीके से नहीं देखते हैं, क्योंकि हाइपोथेटिकल हो जाएगा आंसर देना। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इन सारी विपरीत परिस्थिति में भी पंजाब में बढ़ने का स्कोप दिखता है और वो अपने बल पर दिखता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो वक्त आपका बचा है पार्टी अध्यक्ष के तौर पे, आप क्या चाहेंगे कि इतिहास क्या याद रखे कि नड्डा जी की लेगेसी क्या रही पार्टी अध्यक्ष के तौर पे? क्या वो चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं कि विरासत के तौर पे आप भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दें? देखिए, जैसे अब आपने पूछा ना राहुल जी, हमारी सोच का प्रोसेस प्रेसिडेंटशिप से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं पार्टी को जब देखता हूं तो आजीवन देखता हूं, अंतिम सांस तक देखता हूं। और मैं ये देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए
मोदी जी ने जो सपना है जिसको हम साकार करने के लिए बढ़े हैं कि भारत विश्व गुरु बने, उसमें पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक उपकरण की तरह भारतीय जनता पार्टी का सदुपयोग हो, हम उसका टैलेंट का उपयोग कर सकें और इस चेंज के प्रोसेस में बीजेपी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। आज हम 8 लाख प्लस बूथ पर सक्षम हैं, हम इसको 10 लाख प्लस बूथ पर पहुंचाना है, हमें वो हम पहुंचाएंगे। हमारे बूथ की कमिटीज कंसोलिडेटेड हों, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हो, ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको पूरा करना हमारा काम है। और जैसा अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उत्कर्ष देखना बाकी है, तो देयर आर स्टेट्स वेयर वी हैव टू एक्सपैंड, देयर आर स्टेट्स where we have to consolidate. There are states where we are in opposition, we have to come in the governance. There are states which are being ruled by regional parties, where we have to see a strong ideological based party should take over. ये सब हमारे काम हैं, ये मेरे टेन्योर तक पूरे होंगे, ये हमारी लगन हो सकती है, लेकिन हम सारी जिंदगी काम करेंगे और जो भी आगे आएगा उसके साथ मिलकर के काम करेंगे। हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि नाउ यहाँ पर नाउ योर टाइम एंड्स, नो, माय टाइम इज फॉर whoever will come as the president, I will be a contributory factor. अभी तक राजनाथ जी, नितिन जी के साथ अमित जी जुड़े हुए थे, उसके बाद हम जुड़ गए, हमारे बाद कोई और आएगा उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उत्कर्ष तक ले जाना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज बनने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की रेलेवेंस बनी रहना, स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल बेस के साथ ऑन रिसर्च एंड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, हाउ कैन वी इंप्रूव द कॉमन मैन्स लाइफ, इसके लिए कंट्रीब्यूट करना, इसके लिए डेडिकेट करना, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। और ये एक फ्लेवर होता है, ये कोई पोजीशन से नहीं आता है, ये एक ललक होती है, और उस ललक में जीने वाले मैं नहीं हूं, लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है, उसके बावजूद भी सारा जीवन लगा करके बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो हम उन लोगों में से हैं। ये तो हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप बिकम प्रेसिडेंट। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा वो करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उनकी चिंता कौन करेगा और उनको साथ लेकर के कौन चलेगा, हम चलेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। तो यही मेरा टारगेट है, इसको मैं पूरा करना चाहूंगा। हमने अब तक चर्चा की भारतीय जनता पार्टी की, 1 मिनट मैं चर्चा करना चाहता हूं विपक्ष के बारे में, क्योंकि 2024 के चुनाव में विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो लामबंद हो। पहले भी कोशिश की, वो चली नहीं। क्या आपको लगता है कि क्योंकि वो देख रहे हैं कि बीजेपी मजबूत हो रही है, इस बार विपक्ष के कंसोलिडेट करने के चांसेस ज्यादा हैं? और दूसरा, हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हो या फिर तृणमूल हो, वो नए नए स्टेट्स में जा रहे हैं, गुजरात हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं फायदा है कि जितना विपक्ष का वोट बिखरेगा उतना तो आपको फायदा है? देखिए, हम इस तरीके से नहीं सोचते हैं। आप मिल के लड़े, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था, आप क्षमा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिल करके लड़ी, तो हमारे पास सभी पत्रकार, यहाँ बहुत पत्रकार बैठे हैं, सब मेरे कान में आके बोलते थे बुरा हाल हो जाएगा, तब खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कहता था दिल थाम के बैठो, चुनाव के नतीजे देखना, एक तरफा फैसला आएगा और मोदी जी के पक्ष में फैसला आएगा, इस बात को ध्यान में रखना। वो साथ लड़े, अलग लड़े, देखिए लड़ने वाले की ताकत ये होनी चाहिए, कम व्हाट मे वी विल विन, एंड कम व्हाट मे आवर स्ट्रैटेजी शुड बी फुल प्रूफ। ये तो सर्कमस्टांस, हम दूसरों के भरोसे राजनीति नहीं करते हैं, हम अपनी ताकत पर करते हैं, हमको अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है। वो कमजोर है इसलिए हमको ले आओ, नहीं, आप सारे मिल जाओ। नेशनलिज्म पर क्या कहना है, डेवलपमेंट पर क्या कहना है, कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहना है, ये इश्यूज हैं। कॉमन मैन की फ्लाइट को कैसे आप परिवर्तित कर रहे हो, उस पर आपका क्या कहना है, गरीब आदमी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, इस पर आपको क्या कहना है, आम आदमी की हेल्थ फैसिलिटीज उस तक पहुंचे और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मिले, उस पर आपको क्या कहना है। तो आपके मुद्दे हैं कुर्सी पर आना, हमारे मुद्दे हैं कि कुर्सी के माध्यम से देश को परिवर्तित करना, आगे बढ़ाना, मुद्दे अलग हैं। इसलिए हमको उनका कोई चिंता नहीं होती है, वो जो चाहे करें, उनको मुबारक। हम अपने मेहनत पर और अपनी ताकत पर और मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप पर
भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम परिवर्तन के एजेंट्स हैं। हम कोई किसी कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आए हैं और किसी कुर्सी पर बैठ करके सत्ता को भोगने के लिए नहीं आए हैं। सत्ता का उपयोग करते हुए लोगों के दिलों में भी स्थान बनाते हुए देश को आगे ले जाने के लिए आए। आपने हार और जीत की बात की। बहुत सारी जीत बीजेपी ने देखी है। एक बड़ी हार हुई पश्चिम बंगाल में। जब पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखते हैं, कहाँ चूक हो गई, कहाँ कमी रह गई, क्या आप अलग कर सकते थे, और चुनाव के नतीजे आने के बाद वहां तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही है। अमूमन नए लोग बीजेपी में आते हैं, यहाँ तो आपके लोग छोड़ छोड़ के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो इससे क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव से पहले स्थिति मजबूत हो उसकी जगह तो आपके कुछ एमएलएज जो कि फॉर्मर मिनिस्टर्स भी थे वो आपको छोड़ गए, क्या पार्टी उससे कमजोर? देखिए, देखने का नजरिया है राहुल जी। मैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के रिजल्ट से ऑप्टिमिस्टिक होता हूं, आशावादी होता हूं। आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 3-3.5 साल के गैप में वोट परसेंटेज को 4 से बढ़ा करके 38-29 तक ले जाना ये छोटी बात है। 3 एमएलए से बढ़कर के 77 एमएलए हो जाना ये छोटी बात है। सीपीएम सीपीआई का, कांग्रेस का सफाया हो जाना और ओनली पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश होना ये कोई छोटी बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम सत्ता के लिए चुनाव लड़ रहे थे, कम समय था, बेस एक्सपैंड करने के लिए और टाइम चाहिए था। हम इसको फैक्चुअली इमोशनली हम नहीं डिस्कस करते। 3 साल के अंतर बूथ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना, इतनी बड़ी स्टेट में अपने आप को एस्टैब्लिश करना, वी कुड गो एज फास्ट एज वी कुड। हम जितनी कम समय में जितनी तेज चल सकते थे वो हमने चलने का प्रयास किया है और नतीजे भी आए हैं। उस नतीजे से हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, ये सबके लिए है। हम तो लड़ेंगे ही, लेकिन आज 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, अ स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर हो, ब्यूरोक्रेसी क्रम्बल डाउन हो, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिसाइज्ड हो और अपने दुश्मनों को लिक्विडेट करने के लिए और समाप्त करने के लिए हर अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स को लेकर के आप चले हों, ये हम 21वीं शताब्दी में कौन सा भारत में हम इस प्रदेश को देख रहे हैं? यू सी 2,500 हाउसेस हैव बीन डिमोलिश्ड, 80,000 पीपल को अपना घर छोड़ना पड़ा है, 191 होम शेल्टर्स पार्टी चला रही है, बीजेपी चला रही है। लगभग कंपनसेशन की दृष्टि से देखा जाए तो 10 करोड़ से ज्यादा जो डैमेज हुआ है उसका नुकसान हुआ है। 191 के आसपास सेक्सुअल अब्यूज केसेस है, सीरियस सेक्सुअल अब्यूज केसेस है, 53 मर्डर केसेस है। दिस इज ऑल आई एम सेइंग आफ्टर इलेक्शंस दिस हैज हैपेंड। देयर आर 12,000 केसेस रजिस्टर्ड। ये ह्यूमन राइट्स का क्या जीता जागता एक तरीके से उसके सिस्टम को चैलेंज करने का एक तरीका बना हुआ है। हमें विश्वास है कि ये लड़ाई हम ही लड़ सकते हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ेंगे। एक एक केस को हम बहुत ताकत के साथ परस्यू कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन से लेकर के बाकी सब लोग इस काम में जुटे हैं। लॉ के माध्यम से इसमें जीत हमें हासिल होगी। ये दीगर बात है कि आज़ाद भारत में जहां हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की, हेल्थ इंडिकेटर्स की, वहाँ हम देखते हैं मैल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। वहाँ हम देखते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। वहाँ हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रम्बल डाउन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में। एजुकेशन के नाम पर जो हो रहा है वो भी हमको दिख रहा है। तो ये इंडिकेटर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स बताते हैं। मैं हेल्थ मिनिस्टर था, 6 महीने डेंगू के मॉर्टेलिटी केसेस का रिपोर्टिंग नहीं की है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। मैं बोलता रह गया, मैं कहा ममता जी दिस इज नॉट योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट वांट्स टू हेल्प यू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू हेल्प यू, होवे ना करवे ना। ये क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी ना देश चलता है। आई एम देयर टू हेल्प यू, यू आर नॉट टेकिंग दी हेल्प। और डेंगू के केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे, डॉक्टर के पास क्या घबराया हुआ डॉक्टर, रिपोर्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये प्रजातांत्रिक देश है का प्रजातांत्रिक वो ढांचा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी से इस पर कोई
सपोर्ट नहीं मांगते हैं, हम अपनी ताकत पर डेमोक्रेटिकली वी विल विन ओवर, ये मैं आपको जरूर। वक्त खत्म हो रहा है, कुछ सवालों की रिक्वेस्ट आ रही है, तो 2 सवाल हैं। एक अशोक सिंघल पूछना चाहते हैं, अशोक जी पूछिए। माइक आ रही है। अशोक जी के सवालों से तो सर एक सवाल ये, किसानों के मुद्दे पे बात हो रही थी काफी, किसानों के मुद्दे पे ही बात हो रही थी। वरुण गांधी लगातार किसानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी का भी उन्होंने ट्वीट किया, वीडियो जो हादसा हुआ, और आपने सम्मान भी किया था उनको 1 हफ्ता पहले, घर पे बुलाया था, तो वो समझे नहीं, उसके बाद भी ट्वीट कर रहे हैं लगातार। क्या, और कार्यसमिति से बाहर भी कर दिया माँ बेटे को, दोनों को, क्या उसी का रिएक्शन था? तो क्या वरुण गांधी पार्टी में अभी रहेंगे? क्या बताया उन्होंने, क्यों नाराज हैं और समझे नहीं आपकी बात से वो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे अब आपने कहा सम्मान किया, ये हमारे यहाँ तरीका नहीं है, हम सम्मान नहीं करते, बुलाते हैं और हम आपस में मिल करके बात करते हैं। शब्दों से बड़ा अंतर पड़ जाता है। तो हमने उनको बुलाया, बात की है, और हमारी बात की में आगे चल करके उसके अच्छे नतीजे आएंगे, ठीक रहेगा सब कुछ। चित्रा पूछना चाह रही है। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं आपसे। पहला ये कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा लगता है जिसको लेकर बीजेपी आम लोगों के बीच जाकर वोट मांगेगी? मेरा दूसरा सवाल यह है, आपसे कुछ देर पहले प्रियंका गांधी ने आज तक को इंटरव्यू दिया है, उसमें उनकी ओर से कहा गया है कि जो मेन अपराधी है उसको पुलिस आमंत्रित कर रही है। देश और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि पुलिस कहती हो कि आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आखिर आरोपियों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और तीसरा सवाल यह है कि प्रियंका गांधी की अति सक्रियता उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी को परेशान करती है? पहला प्रश्न, मुद्दा। हाँ, देखिए जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी का उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान और योगी जी का प्रोएक्टिव रोल होकर के उसको धरती पर उतारना। आप मेडिकल कॉलेजेस की बात लीजिए, कि मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ, 59+ मेडिकल कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जिसमें से 33+ मेडिकल कॉलेजेस मोदी जी की सरकार ने योगी जी को दिए। इंडिकेटर्स की बात कर लीजिए, मैं 1998 में जब हेल्थ मिनिस्टर था तो अपने हिमाचल में बड़ी मेहनत करता था। जब नेशनल इंडिकेटर्स देखता था तो कहते थे कि भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं पूछता था कि क्यों अच्छी नहीं है, तो कहते थे बीमारू राज्य हैं, ये वो तकलीफ देते हैं। मैंने कहा क्या होता है बीमारू राज्य? तो वो 5 स्टेट्स गिना देते थे, उसमें से उत्तर प्रदेश का यू भी होता था कि ये बीमारू राज्य है, इसके कारण हो जाता है। आज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो उठा लीजिए, IMR उठा लीजिए, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट उठा लीजिए, चाहे आप विकास के हेल्थ इंडिकेटर्स उठा लीजिए, आप डिजीज, वाटरबोर्न डिजीज की कमी की बात उठा लीजिए, आप वैक्सीनेशन की बात उठा लीजिए, आप एजुकेशन की बात उठा लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठा लीजिए, आप कनेक्टिविटी की बात उठा लीजिए। आप जो दंगों से पीड़ित प्रदेश माना जाता था वो दंगा रहित प्रदेश हो गया है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के, कनेक्टिविटी से लेकर के, जहां जाता हूं मैं उत्तर प्रदेश घूमता रहा, मैं सबसे ज्यादा हाईवेज पर चलने वाला मैं ही हूँ। पूछता था ये कब बना शुरू हुआ? 2017। ये कब कंप्लीट हो रहा है? 2020, 2019, 2000। ये सारे हाईवेज पहले मैं जाता था तो बोलते थे जी, अब हमको लोग बोलते हैं मैं सुबह आ जाऊंगा। मैं कहा कैसे आ जाओगे? अब तो बहुत अच्छा है जी, वो तो बस फ्लाईओवर लेना है, उसके बाद तो धनाधन 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यही 2 घंटे पहले बुलंदशहर जाने का मतलब ये होता था कि सुबह के निकलो तो शाम तक पहुंच जाओ, तो अपने आप को खुश नसीब समझो। तो ये भी हमने उत्तर प्रदेश का बदलाव देखा है। तो डेवलपमेंट हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से लोगों को साथ एक क्लीन प्रशासन देना। जहां तक आपने बात की कि प्रियंका जी ने कहा कि किसी को विशेष रूप में हम सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि साइंटिफिकली, प्रोफेशनली SIT जो भी दोषी होगा उसको बुक्स पर लाएगी, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून अपना एक्शन लेगा और कानून को की प्रक्रिया पूरी होगी, ये हम आपको एश्योर करते हैं। तीसरा, आपने कहा कि वो एक्टिव हो गई हैं। हम, ये प्रजातंत्र का देश है, वो कोई किसी को नहीं रोक सकता है, वो जरूर एक्टिव हो। मुझे कोई हम रोकने वाले कौन होते हैं? आप जरूर करें, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि
पॉलिटिकल पार्टी के रूप में और लीडर के रूप में इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें कि आप जो कर रहे हैं उससे समाज का कितना भला हो रहा है, आपकी पार्टी का कितना भला हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता आपको छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं, कभी आपने इसका इंट्रोस्पेक्ट किया? जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के 6-6 दशक, 4-4 दशक, 5-5 दशक पार्टी के लिए लगा दिए, वो आपको गुड बाय कहकर चले जाते हैं। कभी आपने सोचने की कोशिश की? तो अपने घर में झांकें, इंट्रोस्पेक्ट करें, मुद्दों को इशू को करें। मुझे तो मेरा विरोधी भी कोई मुद्दा देता है तो ऐसे यू हैव ए पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू। हमने बपौती थोड़ी ना ले रखी है कि हम ही आई एम द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम। नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास कोई रिपोजिटरी नहीं, हमने भी आप लोगों से मिलकर के सीखा है। लेकिन सच्चाई को ढूंढने का अधिकार तो मेरा है, तो मैं चाहूंगा वो भी सच्चाई को ढूंढे। ये फ्लैमेबॉयंस और ये ग्लैमर और शो से राजनीति, ये 21वीं शताब्दी का भारत है, ऐसे चलेगा नहीं। ये मुद्दों पर चलेगा और जो लोग मेहनत के साथ खड़े होना चाहते हैं, गरीब के साथ खड़ा होना चाहते हैं, उसको वो भारत आगे चलेगा। इस बात को हमको समझना। Anjana, one last question and then we finish. नड्डा जी, लखीमपुर खीरी की हिंसा बतौर अध्यक्ष आपकी कोशिश होगी कि चुनाव में जीत मिले, लेकिन क्या आशीष मिश्रा गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने ऐसी किरकिरी पार्टी की करा दी है कि आने वाले चुनावों में कई जगहों पर सफाई देता फिरना पड़ेगा कि जो शख्स कल तक टेलीविजन इंटरव्यू पर आ रहा था वो आज नदारत है, पुलिस नोटिस पर नोटिस चस्पा कर रही है? सब ये ठीक बात है, हम लोगों को भी इसमें केयरफुल होने की जरूरत है और ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से हम कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले, और इसलिए जो भी इसमें दोषी होगा उसको हम उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ये योगी सरकार सुनिश्चित करेगी। मैंने इस सेशन के शुरू में कहा था कि सचिन तेंदुलकर की जगह टीम में आना, उसी जगह पे बैटिंग करना, अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। पिछले करीब 50 मिनट पे नड्डा जी ने ये दिखाया कि वो सचिन बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा, इनकी पहचान अपने काम के लिए है, ना सचिन बनने में इनकी रुचि है। सचिन की पूरी इज्जत है, सचिन से पूरी फोन पे बातचीत है, लेकिन ना सचिन बनने की कोशिश है और ना ही ऐसी कोशिश करना चाहते हैं। आपने इनके कम ही इंटरव्यू सुने होंगे, बड़े पापड़ बेलने पड़े हम लोगों को इनको कन्विंस करने के लिए कि आप आइए। हम शुक्रगुजार हैं नड्डा जी कि आप इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। हाँ प्लीज। क्या है, ऐसी अब चर्चा कर दी तो मैं दूर क्यों रहता हूँ? वो ये इसलिए कि मेरे इंटेंशन और वाक्य में कहीं थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो मुझे सारा दिन निकल जाता है मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो मैं नहीं चाहता कि दिन इसी में निकल जाए कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सुनता रहता हूँ, अपने से जितना हिम्मत होती है मैं काम में जुटा रहता हूँ, इसलिए मैं इंटरव्यूज कम दे पाता हूँ। तेंदुलकर की इतनी चर्चा हुई तो मैं जानना चाहता हूँ आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आप किसकी तरह बैटिंग करते हैं? नहीं, मैं सभी, देखिए इसमें भी अगर आप बात करें, दो चीजें मैं कहूंगा। एक तो हर प्लेयर की अपनी एक स्थान है। A match cannot take place if without a bowler. It cannot take place without a wicket keeper also. So everybody has its own place, and we have to regard and respect that place. हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है। ये हाफ बैक वाले को सेंटर फॉरवर्ड बना दोगे नुकसान हो जाएगा, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को लेकर के ओपनिंग बैट्समैन उतार दोगे नुकसान हो जाएगा। तो कैप्टन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वो कैप्टन बन गया है तो विकेट कीपर से बॉलर ना बन जाए, वो विकेट कीपर ही रहे तो ठीक रहता है। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि सबकी अपना अपना एक स्थान है, उस स्थान को हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अच्छी क्रिकेटिंग में रन्स लाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन रन्स घटाना ये भी फील्डर और बॉलर का बहुत बड़ा काम होता है। सो एवरीबडी इज इम्पोर्टेंट एंड वी शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, ऐसा मैं कहूँगा। तो क्रिकेट का आपने अड्डा ही जमा दिया। आप आए यहाँ पे और आपने अहम बात की कि हर कप्तान सेम स्टाइल से कप्तानी करे ये जरूरी नहीं, लेकिन कप्तान अपनी टीम को जीत में लेके जाए
वो बहुत जरूरी है। आप जुड़े हमारे साथ इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस गाला सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां जेपी नड्डा जी को, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Mr. Nadda. Thank you, Rahul. Once again, ladies and gentlemen, please raise a warm applause for Mr. J.P. Nadda as I call upon Mr. Sandeep R. Singh, Group Vice Chairman, Darwin Platform Group of Companies, to come up on stage and present a small token of our appreciation to the BJP President. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you, Mr. Nadda, for gracing our conclave. Thank you.